حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں پیک کولڈ ویو کی وارننگ، حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں ٹیمپریچر میں 6 تا 9 ڈگری کمی کا خدشہ، 18 سے 21 دسمبر تک زیادہ اثر کا امکان۔ حیدرآباد کی سماجی کارکن خالدہ پروین نے بہار سی ایم نتیش کمار کے خلاف درج کروائی شکایت، مسلم خاتون کے نقاب ہٹانے کو قرار دیا مسلم خواتین کے حجاب اور وقار کی توہین۔ امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن میں 3 ماہ کی توسیع، تلنگانہ وقف ٹرائیبیونل کا بڑا فیصلہ، وقف رجسٹریشن کا عمل تیز رفتاری سے کرنے منسٹر اظہر الدین کی ہدایت۔ سرمائی تعطیلات گزارنے صدر جمہوریہ شریمتی دروپدی مرمو کی آمد حیدرآباد، گورنر جشن دیو ورما اور ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کیا استقبال۔ ریاست میں تیسرے مرحلے کے پنچایت انتخابات بھی ہوئے مکمل، تیسرے مرحلے میں بھی کانگریس کو سبقت، BRS کا بھی ٹھیک ٹھاک مظاہرہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں شدید سردی کی ایک اور لہر آنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق 18 سے 21 دسمبر کے دوران حیدرآباد شہر سمیت پوری ریاست میں پیک کولڈ ویو کا اثر رہے گا۔ موسمی ماہرین کے مطابق شمالی اور مغربی تلنگانہ کے اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 6 تا 7 ڈگری سیلسیس کم ہو سکتا ہے، جبکہ حیدرآباد کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت میں 7 تا 9 ڈگری تک خطرناک گراوٹ کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 10 دنوں سے ریاست میں سردی کی لہر جاری ہے اور آئندہ 4 دنوں میں یہ سردی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، جس سے عوام بالخصوص بچے، بزرگ اور بیمار افراد شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو احتیاط تدابیر اختیار کرنے، گرم کپڑوں کے استعمال اور غیر ضروری طور پر رات کے وقت باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے، تاکہ شدید سردی کے مضر اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ حیدرآباد کی معروف سماجی کارکن محترمہ خالدہ پروین نے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف شکایت درج کروائی ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ ایک عوامی تقریب کے دوران ملازمت کا تقرر نامہ دیتے وقت ڈاکٹر نصرت پروین کے نقاب کو اسٹیج پر ہٹایا گیا، جو مسلم خواتین کے حجاب اور وقار کی توہین کے مترادف ہے۔ خالدہ پروین نے اس اقدام کو قانون، عزت اور جواب دہی کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ایک سنگین توہین ہے بلکہ قابل تعزیر جرم بھی ہے۔ انہوں نے شکایت میں مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی بنیاد پر BNS کی کئی دفعات کے تحت FIR درج کی جائے۔ خالدہ پروین نے کہا کہ خواتین کے مذہبی لباس میں مداخلت ناقابل قبول ہے اور ایسے واقعات کے خلاف قانونی کارروائی ضروری ہے تاکہ آئندہ کسی بھی سطح پر اس طرح کی حرکت کی روک تھام ہو سکے۔ نتیش کمار کے خلاف جو ایکٹ تھا حجاب زبردستی کھینچنے کا، جو ویژولس ہم نے دیکھا، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، غلط ہے کہ اتنے بڑے CM پد میں رہتے ہوئے اس کا یہ حرکت بہت لوگوں کو ہمت دیتی ہے۔ اس لیے نتیش کمار کو چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ان کو کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر آیوش ڈاکٹر کا جاب آفر لیٹر دیتے ہوئے ایک ہاتھ سے آفر لیٹر دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے نقاب کھینچتے ہیں۔ اگر وہ نقاب نہیں لگانا چاہتی تو خود نقاب کے بغیر آتی تھی۔ جب نقاب لگانا اس کا رائٹ ہے اور خاتون کا، تو اگر خاتون کے پرمیشن کے ان کا کپڑا چھینا، ان کے جسم پہ چھینا بھی گناہ ہے، یہ کرائم ہے۔ تو کرائم کیے ہیں نتیش کمار صاحب، ڈگنیٹی آف وومن کا دھجیاں اڑا دیے ہیں اور اس کو پیچھے رہنے والے لوگ ہنس رہے تھے، یہ ہنسی مذاق کے
सिर्फ उस खातून का नहीं, पूरे ख़वातीन का ये इंसल्ट है, स्पेशली मुस्लिम ख़वातीन का ग्रेट इंसल्ट है। ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लंगर PS में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किए और हम CA साहब से दरख्वास्त करते हैं कि FIR करें और नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई करें, तेलंगाना में कार्रवाई हो। और ये ख़त्म ही नहीं हुआ, इतना घटिया किस्म के संजय नाम के UP के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से कोई ऐसे रिपोर्टर जाके पूछते हैं कि नकाब छीने से बवाल हो रहा, वायरल हो गया, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो बोलते सिर्फ चेहरा तो छुए हैं, वो आदमी है, अगर कहीं और छूता तो क्या होता, क्या करते। ये किस्म का माइंड सेट अब बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, यहाँ पर कि हर किस्म के मजहबी लोगों को मजहबी के मतलब चलने की आज़ादी है, पहनने ओढ़ने खाने की आज़ादी है, कि ऐसे मुल्क में इस तरह के इंसिडेंट्स जन्म लेना, फ़रोग करना, ये इंतहाई के मजम्मत करने वाली बात है, बल्कि रोकने वाली बात है। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार की जानिब से एक अवामी तकरीब में एक खातून मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब निकाल देने के वाक़े पर अवामी नाराजगी में इजाफा हो रहा है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस की जानिब से इस वाक़े पर 20 दिसंबर को बड़े पैमाने पर एहतजाज का फैसला किया गया है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर सैयद खालिद सैफुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर बिहार की इस हरकत पर शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने की कोशिश की है और ये गैर दस्तूरी हरकत है, इससे खवातीन की इज्जत व विखार मुतासिर होता है। उन्होंने कहा कि वाक़या सिर्फ गलत रवैये का नहीं बल्कि खवातीन के हुकूक को पामाल करने का है। ये दस्तूर में फराहम करदा हक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इस हरकत के खिलाफ हैदराबाद सिटी कांग्रेस ने 20 दिसंबर को 4 बजे दिन एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि तफसीली एहतजाजी प्रोग्राम का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस हरकत पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं खालिद सैफुल्लाह, प्रेसिडेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। आज मैं हैदराबाद के लोगों से एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। बिहार के एक सरकारी प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब सबके सामने खींच लिया। ये सिर्फ बदतमीज़ी नहीं है, ये एक औरत की इज्जत और उसके मर्ज़ी के कपड़े पहनने के हक़ पर सीधा हमला है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 हर औरत को इज्जत, प्राइवेसी और अपनी बॉडी पे हक देता है। इस तरह का रवैया बिल्कुल गलत है। ये मसला किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये हर माँ, हर बहन और हर बेटी का मसला है। ताकत का गलत इस्तेमाल करना और किसी औरत की पर्सनल स्पेस तोड़ना हमारे संविधान और इंसानी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ एक्शन लेना होगा। सिर्फ बातें नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। अगर आज हम चुप रहें तो कल ऐसी हरकतें आम हो जाएंगी। इसलिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 20 दिसंबर को शाम के 4 बजे प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस परमिशन के बाद एग्जैक्ट जगह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमारा ये प्रोटेस्ट पीसफुल और क़ानूनी दायरे में रहते हुए होगा। हमारा संदेश सिंपल है, औरत की बेइज्जती कबूल नहीं, ताकत का गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। मैं हैदराबाद के सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा साथ दें और पूरे मुल्क को बताएं कि हैदराबाद औरतों की इज्जत और आज़ादी के साथ खड़ा है। ये राजनीति का नहीं, इंसानियत और इज्जत का सवाल है। जय हिंद, जय कांग्रेस। तेलंगाना में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और मौसर नज़्म नस्क को मजबूत बनाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमला के इंदिराज की मुद्दत में 3 माह की तौसीक़ कर दी गई है। इस ऐलान का रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने बताया कि रियासत भर में मौजूदा
63,000 से ज़ायद वक्फ जायदादों की तफसीलात को जमा करना, जांचना और डिजिटल निज़ाम में दुरुस्त तरीके से दर्ज करना एक बड़ा अमल है। इसीलिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने वक्फ ट्राइब्यूनल से रुजू किया, जिस पर ट्राइब्यूनल ने इंदराज की मुद्दत बढ़ाने की इजाज़त दी। वजीर ने कहा कि अब तक 46,000 से ज़ायद जायदादें पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि बाकी जायदादों का इंदराज आइंदा 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मकसद सिर्फ इंदराज नहीं बल्कि हर वक्फ जायदाद की दुरुस्त और बगैर किसी खामी की तफसील दर्ज करना है, ताकि नाजायज़ कब्ज़ों और बदउनवानी को रोका जा सके। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टीमरीज चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, हज कमेटी के सदर खुसरो पाशा, महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी MB शफीउल्लाह IFS और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे, जिन्होंने इस अक़लियती इदारों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक अहम इस्लाह करार दिया। 5th को लास्ट डेट था उम्मीद पोर्टल का, वो 6 महीने दिए थे। 6 महीने में तो काम होने से कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं पे भी स्टेट में ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, ट्रिब्यूनल ने हमको मौका दिया है और 3 महीने दिया है और एक्सटेंशन के साथ दिया है, और ये भी ऑर्डर दिया है कि पोर्टल जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि जो हमारे जो पेंडिंग है, तो मेरे ख्याल में 16,000 कुछ ऐसा पेंडिंग है, तो मेरे ख्याल में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो भी उसको कोशिश करके वहाँ से भी, और नए हमें जो IT के जो प्रोफेशनल लड़के, उनको इंशाल्लाह ज़रूर हायर करके और वो भी करेंगे, तो उनका भी आउटपुट लेंगे और डिस्ट्रिक्ट पे भी, और जितने भी वक्त के प्रॉपर्टीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद पोर्टल में डालने की कोशिश। स्टार्टिंग में जो IT के इश्यूज आ रहे थे, बिल्कुल जो इसमें अपलोड नहीं हो रहा था उम्मीद पोर्टल पे, नहीं बिल्कुल पास टाइम उम्मीद पोर्टल बराबर भी काम नहीं कर रहा था और स्लो हो जा रहा था, कभी खुल रहा नहीं था, तो इसी वजह से भी थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेज भी थे, बट लेकिन अब ठीक हो जा रहे, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एंडोमेंट्स में और कई डिफरेंट आर्काइव्स में, तो उसको एक साथ लेके आना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर से तो डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे कि वो लोग जो है ना पोर्टल पे अपडेट नहीं कराए। नहीं बिल्कुल करेंगे, अभी इंशाल्लाह पोर्टल डर में है, नहीं कोई डरने की कोई कोशिश हो जाएंगी, कलेक्टर नहीं कोई भी कुछ भी कब्जा नहीं कर सकता, नहीं ऐसा कोई कब्जा कर ही नहीं सकते कोई भी, क्योंकि जो वक्त की जो प्रॉपर्टी उसको कोई कब्जा नहीं कर सकते, वो बराबर हम उसको सेफ्टी करेंगे, सेफ रखेंगे इंशाल्लाह। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने आज हैदराबाद पहुंची। सदर जमहूरिया बलारम में वाक़े राष्ट्रपति निलायम में 4 दिन क़याम करेंगी। 21 दिसंबर तक इनका शहर में क़याम रहेगा और वो इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी वगैरह तकारीब में प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया हिंद आज एक खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सदर जमहूरिया हिंद का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया के हैदराबाद में क़याम के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वसी तर और मौसर इंतजाम किए गए हैं। बलारम के अतराफ के इलाकों में 5 दिन के लिए ट्रैफिक तहदियात आयद की गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी मौसर इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने रियासती वजीर श्रीमती सीतक्का को सदर जमहूरिया के दौरे के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग भी मुकर्रर किया है और वो सदर जमहूरिया के दौरे के मौके पर इनके लिए इंतजामात की निगरान होंगी। एयरपोर्ट पर दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना में तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए आज रायदही हुई। रियासत में 2 मराहिल में पंचायत इंतखाबात के लिए वोट डाले जा चुके हैं और इनके नताइज का भी ऐलान हो चुका है। 2 मरहलों में कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की है और अक्सरियती नशिस्तों पर कब्जा किया है। वहीं BRS ने भी अच्छा खासा मुजाहरा करते हुए सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबर्स की खातिर ख्वाह तादाद पर जीत हासिल की है। आज तीसरे मरहले के इंतखाबात में रायदही हुई। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंचायत इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। दिन में 2 बजे से वोटों की गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है। जो ताज़ा तरीन रुझानात मिले हैं, इनके मुताबिक तीसरे मरहले में भी कांग्रेस के ताइदी उम्मीदवारों की खातिर ख्वाह तादाद जीत की तरफ गामजन दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पर BRS है और इसे भी कुछ अजला में अच्छी अवामी ताइद हासिल हो रही है। जुमला और खतई नताइज का रात देर गए तक ऐलान होने का इम्कान है। अजला आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल और कुमरम भीम आसिफाबाद में तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात आज चारशंबे के रोज मजमूई तौर पर पुरअमन और मुनज़्ज़म माहौल में मुकम्मल हुए, जहां अवाम ने
गैर मामूली जोश व खरोश के साथ जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हुए 82.56% रिकॉर्ड रायदही दर्ज कराई। वोटिंग सुबह मुकर्ररा वक्त से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक जारी रही। इस दौरान तमाम पोलिंग मराकज पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। जिले कलेक्टर राज शीशा ने मुख्तलिफ मंडलों के पोलिंग मराकज का दौरा किया, जबकि कलेक्ट्रेट से हसास मराकज के वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी भी की गई, जिस पर उन्होंने इंतखाबी अमल की शफाफियत और नज़्म व ज़ब्त पर इत्मीनान का इजहार किया। जिले कलेक्टर ने इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर अवाम, पोलिंग अमले और सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश करते हुए कहा कि तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना और मुकम्मल अमन के साथ अंजाम पाए। ताहम आसिफाबाद जिले मरकज में 9 तश्कील शुदा राजमपेट ग्राम पंचायत में फ्लेक्सियों को हटाने के मामले पर रुकने असम्बली कोवा लक्ष्मी और कांग्रेस कायद श्याम नायक की रिहाइश गाहों के सामने वक्ती कशीदगी देखी गई, जिसे इंतजामिया की बरवक्त मदाखलत से फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया है। నేను మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి వినండి స్వామి, అయ్యప్ప వినండి, మీ బాబుని అడగండి, అందరినీ లోపలికి పంపించుకోండి అని చెప్పారు। हैदराबाद मेट्रो रेल मंसूबे को LNT से सरकारी तहवील में लेने का अमल मार्च 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि मुंतकली का ये अमल मौजूदा माली साल के अख्तिताम तक बगैर किसी रुकावट और तयशुदा मुआहदों के मुताबिक अंजाम दिया जाए। आला सतही जायज़ इजलास में उन्होंने वाज़ेह किया कि आइंदा 100 दिनों में इस अमल को मुनज़्ज़म और मरहलेवार तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जबकि ट्रांसैक्शन एडवाइज़र IDBI बैंक को हिदायत दी गई है कि वो अपनी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करे ताकि टेक ओवर में ताख़ीर ना हो। इजलास में LNT हुक्काम से भी कहा गया है कि मुंतकली के पूरे अमल में मुकम्मल ताउन करें। टेक ओवर के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सरफराज अहमद को ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से मुताल्लिक तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि 25 सितंबर को LNT ने मेट्रो मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने फेज 1 की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ बहानों से दरअसल कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम को कमज़ोर करना चाहती है और इसीलिए वो स्कीम का न सिर्फ नाम बदल रही है बल्कि इसकी दीगर तफसीलात को भी तब्दील किया जा रहा है। मिस्टर पूनम प्रभाकर ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने समाज के तमाम तबकात को राहत पहुंचाने और इन्हें रोज़गार की ज़मानत देने ये कानून नाफिज किया था, ताहम नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस स्कीम को मुतासिर कर रही है और इसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस कानून में जो तब्दीलियां करना चाहती है वो देही इलाकों के अवाम के हक़ में बेहतर नहीं है और इसके नतीजे में बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में जो कानून साजी कर रही है इससे दस्तबरदार इख्तियार कर लेना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत इस स्कीम से गांधी जी का नाम हज़फ करते हुए इनकी तौहीन और बेइज्जती भी कर रही है। हुकूमत को अपनी ऐसी हरकतों से बाज आ जाने की जरूरत है। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు అనేక మంది సామాజికవేత్తలతో చర్చించి ఉపాధి హామీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఒక లైఫ్ లైన్ లాగా తీసుకొచ్చింది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల ఎజెండాలో దాన్ని ఇంకా పట్టణాలకు కూడా విస్తరిస్తామని చెప్పి ఈరోజు దానికి సంబంధించి పేరు మార్చడం ద్వారా రాక్షస ఆనందం పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా పని దినాలకు సంబంధించి పెంచినట్టే పెంచుతూ రాష్ట్రాల మీద భారం వేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అన్నీ కలుపుకొని మహాత్మా గాంధీ రోజ్గార్ యోజనకు పేరు మార్చి విబిజీ రామ్జీ అని పేరు పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు. ఇది పూర్తిగా గాంధీ గారిని అవమానపరిచినట్టే. జాతి పితను ఇప్పటికే గాడ్సే వారసులుగా మీకు ఒక పేరుంది.
ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరిగే విధంగా ఉపాధి పేదలకు ఒక అవకాశంగా ఉన్న ఈ కార్యక్రమం రూపురేఖలు మార్చడం ద్వారా, పేర్లు మార్చడం ద్వారా రాక్షసానందం పొందుతా ఉన్నారు కావచ్చు. తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది, తిరిగి జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారి పేరు పెట్టుకుంటాం, తిరిగి పేదలకు సంబంధించినటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలకే కాదు అవసరమైన చోట పట్టణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది దేశంలో ఒక వెన్నెముక లాంటి లైఫ్ లైన్ పేదలందరికీ. అటువంటి పథకం పట్ల దోబూచలాట ఆడద్దని కోరుతూ, ఇది రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి, అంటే మహాత్మా గాంధీ గారి పేరు తొలగించడం అంటే ఇది దేశ ప్రజలను అవమానపరిచినట్టే అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, దీనిపైన మహాత్మా గాంధీ గారి అభిమానులు ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రను गमनिंचाలని संदर्भंगा कांग्रेस पार्टी के रुकने खानसाज कौंसल ए दयाकर ने इल्जाम आयद किया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत आरएसएस के एजेंडे पर अमल कर रही है और मुल्क के सेकुलर ढांचे को मुतासिर करना चाहती है। ए दयाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तवील तारीख रखने वाली पार्टी है और इसने अपनी जद्दोजहद से मुल्क से अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था। अब कांग्रेस पार्टी को धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि वो बीजेपी से खौफजदा हो जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ ताकत की जबान इस्तेमाल करना चाहती है और अपने इख्तिदार के बलबूते पर मुखालिफिन को धमकाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है, पार्टी खौफजदा भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी दरअसल मुल्क में आरएसएस का एजेंडा नाफिज करना चाहती है और इसी सिमत में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल खुद बीजेपी को राहुल गांधी का खौफ लाहक है और इसी वजह से कांग्रेस कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ఒకే ఒక్కడు రాహుల్ గాంధీ బీజేపీకి మోదీకి నిద్ర పట్టకుండా చేస్తున్న పరిస్థితి మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే పిచ్చి పిచ్చిగా ట్రోల్స్ చేస్తారు, గాంధీని విమర్శిస్తారు, నెహ్రూని విమర్శిస్తారు. నిర్లజ్జగా నిస్సిగ్గుగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న తీరు చూస్తే అందరు కూడా ముక్కున వేలేసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ రోజు ఇదే పరిస్థితి బ్రిటిష్ వాళ్ళతో కొట్లాడేటప్పుడు ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఈరోజు బీజేపీతో కొట్లాడేటప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. బ్రిటిష్ వాళ్ళనే లెక్క చేయకుండా ఏ విధంగా పోరాడిన కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ వాళ్ళని ఎందుకు లెక్క చేస్తారు? అది నడుమంత్రంగా వచ్చి మధ్యన ఏదో అధికారం కొరకు అబద్ధాలాడి తన సస్టైనబిలిటీ కొరకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఓట్ చోరీ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కటి ఎన్నికల జరుగుతున్న సందర్భంలో 10,000 రూపాయలు బడ్జెట్ల నుంచి 32,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి గెలిచి కూడా ఇది మా గెలుపు అనుకుని నిస్సిగ్గుగా ఇలా భాజపాతో ప్రచారం చేసుకుంటున్న బీజేపీ ఇంకా మీకు ఇంకా ప్రజలంటే, ప్రజాస్వామ్యం అంటే, రాజ్యాంగం అంటే నమ్మకం ఉందంటే ఎవరు నమ్ముతాడు? కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ ది హీరో ఆఫ్ ది నేషన్ టుడే. ప్రపంచమంతా కూడా రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి రేపు భారత్ కావాలని కోరుకుంటున్న పరిస్థితి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీ పరిపాలనలో మార్పు తేండి. అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక రకంగా మనుషులతోనో మిషన్లతోనో గెలిచిన దాన్ని మార్పు కొరకు ప్రయత్నం చేస్తే మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు తప్పితే ఇట్లా ఎలాంటి బేసిజాలకు పోకుండా మీరు చేస్తున్న తప్పులతోని ప్రజాస్వామ్యాన్ని వెక్కిరిస్తున్న పరిస్థితి. పైగా ప్రతిపక్ష నాయకులు నచ్చరు, మీకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు నచ్చరు. ఇది రాజరికం, నియంతృత్వం, ఫాసిజంలోనే ఇలాంటివి నడుస్తాయి. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీని విమర్శించడం అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని విమర్శించడం అని తెలుసుకుంటే మంచిదని చెప్పి सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहम मजहबी मौक़े से क़ब्ल इंतज़ामात का जायजा लेने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुतल्लिक़ा महकमा जाती अहदेदारों के हमरा हल्के याकुतपुरा के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा किया और आने वाली शब बारात के पेश नज़र दरकार सहूलतों का मुआयना किया। दौरे के दौरान सफाई, रोशनी, पानी और दीगर बुनियादी इंतजामात का जायजा लेते हुए शब बारात के मौके पर अवामी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए तखमीना मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने अफसरान को ताकीद की कि तमाम इंतजामात मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएं ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ग्रेवयार्ड्स कब्रिस्तान का दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये दौरा इसीलिए किया गया है, आने वाला टाइम जगने की रात का शब बारात का मौके के ऊपर जो हर साल
ख़बरस्तानों में जंगल कटिंग, वाइट वाश और दीगर काम करवाया जाता है। तो हमेशा पब्लिक को ये शिकायत रहती थी कि भाई काम लेट होता, आखिरी टाइम पे जब टाइम नहीं रहता, जब करते प्रॉपर काम नहीं होता, जिसके लिए हम पहले से ही पूरे ऑफिसर्स के साथ में GHMC, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को लेके आज सुबह से ही पूरे मुकम्मल याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ख़बरस्तानों का दौरा किया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट किए डबिलपुरे से और आके हम ख़त्म कर रहे हैं तालाब चिंचलम तालाब कट्टे के एरिया से। तो मेरे साथ में आज जिस डिवीज़न में मैं जा रहा हूं, उस डिवीज़न के कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ थे। डबिलपुरे में अलमदार वाले जाही साहब थे, पत्थरगट्टी पे सोहेल खादरी साहब थे, रैन बाज़ार में वासिफुद्दीन साहब थे और पलट के कुरमागुड़े के अंदर जनाब शफाहत साहब नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, तालाब चिंचलम में डॉक्टर समीना मैडम और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे इंटायर याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। और ख़बरस्तान कमेटी, ख़बरस्तान के मुतवल्लियों ने भी ख़ास तौर से तवज्जो दिलाई है कि जंगल कटिंग, वाइट वाश थोड़ा अर्ली होना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेंद्र साहब को ख़ास इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये काम जल्द से जल्द करवाना है, पहले का पहले कराना, ताकि आइंदा ज़्यादा लेट होने की तरफ से प्रॉपर काम नहीं होता। तो इंशाल्लाह प्रपोजल्स तो ऑलरेडी दे चुके थे हम, एस्टिमेट्स भी बन गए हैं, हम फॉलो करके जल्द से जल्द टेंडर लगा के कामों को तकमील करवाएंगे। और मेरे साथ में जितने भी लोग आज मौजूद थे, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ये काम शुरू होगा, हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों खुद ठहर के ये काम को तकमील कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना पुलिस की जानिब से अब मसनूई जहानत से लेस पेट्रोलिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट कामयाब है और अब इसे सारी रियासत में तोसी देने पर गौर किया जा रहा है। कहा गया है कि इब्तिदा में पायलट बुनियादों पर मसनूई जहानत वाले ड्रोन्स इस्तेमाल करने का तजुर्बा किया गया था, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। कहा गया है कि यह तजुर्बा सारे हिंदुस्तान में अपनी नवैयत का अव्वलीन तजुर्बा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से हालात पर नजर रखने में काफी मदद मिलेगी। तेलंगाना पुलिस अब इन मसनूई जहानत वाले ड्रोन्स को सारी रियासत में इस्तेमाल करने का मंसूबे पर गौर कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये इंतहाई असली टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स निफाज कानून को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा करेंगे और इनसे अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मौसर ढंग से बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। हैदराबाद से काम करने वाली फ्रॉम थॉमस टेक्नोलॉजीज ने ये इंतहाई असली मसनूई जहानत वाले ड्रोन्स तैयार किए हैं। शालीबंडा पुलिस स्टेशन में खुद को यूट्यूब रिपोर्टर जाहिर करने वाले मोहम्मद बिलाल के खिलाफ भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक फरीक से 35,000 रुपये का मुतालबा करते हुए ये झूठा दावा किया कि वो पुलिस स्टेशन में इनका केस मैनेज करवा सकता है और गिरफ्तारी से बचा लेगा, जबकि रकम अदा ना करने की सूरत में गिरफ्तारी की धमकियां भी देता रहा। शिकायत कुनिंदा को मुतअद्दिद मरतबा इसी अंदाज में हिरासा करने के इल्जामात सामने आए हैं, जिस पर शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले पर डीसीपी साउथ जोन श्री किरण खारे IPS ने कहा कि हालिया दिनों में बाद अफराद मीडिया रिपोर्टर के नाम पर गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे केस सेटलमेंट, भत्ताखोरी और मामूल वसूली में मुलविस पाए जा रहे हैं, जिसे किसी भी जरूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को मीडिया या असर व रसूख के नाम पर धमकी या भत्ताखोरी का सामना हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। पुलिस शिकायत कुनिंदा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाती है। टोली चौकी में गुज़िश्ता दिनों पेश आए मोहम्मद इरफान के कत्ल केस को पुलिस ने हल कर लिया है और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। ACP टोली चौकी सैयद फैयाज ने मीडिया को बताया कि हमलावर बिलाल दरअसल इरफान के छोटे भाई अदनान पर हमला करना चाहता था, क्योंकि अदनान ने बिलाल की शरीक हयात को बदनाम करने का सिलसिला शुरू किया था। अदनान पर बिलाल की बीवी को बदनाम करने का इल्जाम है और बिलाल और इसका ब्रादर निस्बती अदनान को कत्ल करने का मंसूबा रखते थे। तम अदनान इनके हाथ नहीं लगा और इरफान पर हमला कर दिया गया था। पुलिस ने इस कत्ल केस के सिलसिले में बिलाल, इसकी शरीक हयात सना बेगम और एक और खातून रूही बेगम साकिन नदीम कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर पुलिस टोली चौकी रमेश नायक और दूसरे भी मौजूद थे। 15 तारीख के दिन टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हदूद में एक कत्ल का वारदात पेश आया है। उसमें मोहम्मद इरफान नामकारी 20 साल का ऑटो ड्राइवर है, उसने मार दिया गया है। और बिलाल नामकारी वो ऑटो ड्राइवर ने उसको चाकू से इरफान का कत्ल किया गया है। इस कत्ल में क्या हुआ बोले तो जो इरफान का भाई है अदनान, बिलाल के बीवी उधर इधर जा रही बोल के थोड़ा गलत फहमी से रूमर्स फैला रहा था। उस रूमर्स को पूछने के लिए बिलाल और उसका साला नवीद और उसकी बीवी सना ये लोग पूछने के लिए अदनान के घर पे गए थे। जब अदनान उस वक्त मौजूद नहीं था तो फिर वो लोग वापस आके ऑटो स्टैंड पैरामाउंट कॉलोनी के पास मरवा हॉस्पिटल के पास देखे अदनान रहा है क्या बोल के, वो अदनान वहाँ नहीं मिला था। इस दौरान अपना जो कत्ल हुआ हो चुका है उसका मोहम्मद इरफान उन भी वहाँ पे पहुंचा ऑटो स्टैंड के पास, और दोनों के बीच में बहस हुई और चाकू निकाल के इसको कत्ल कर दिया बिलाल ने। खानदानी रिश्ता कुछ नहीं मतलब ये है क्या है बोले तो वहाँ पे जो गाड़ी है सिराज की गाड़ी, सिराज के गाड़ी बिलाल को दे चुका था 4 दिन पहले। ये लोग पूरे एक दोस्ताना है, पूरे ऑटो ड्राइवर से एक ही अड्डे में पूरे चलाने वाले हैं, एक ही एरिया में चलाने वाले हैं। तो सिराज नामकारी क्या करे, उसका जो गाड़ी सिराज की गाड़ी दूसरों को दिया बोल के अदनान को नहीं मालूम। तो वो सिराज दोस्त थे, ऑटो ड्राइवर है, बिलाल बोल के नामकारी ऑटो ड्राइवर है। हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा वाक़या शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े रॉयल कॉलोनी के करीब पेश आया, जहां नामालूम हमलावरों ने 19 साल नौजवान मुर्शिद आलम पर तेज धार हथियारों से जानलेवा हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। बुध की शब पेश आने वाले इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शदीद जख्मों के बायस मुर्शिद मौके पर ही दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और शवाहिद जमा करने के लिए क्लोज टीम को तलब किया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जबकि कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावरों की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा गई हैं और जल्द ही मुल्जिमान को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। हमारा को डायल 100 कॉल आया, ये रॉयल कॉलोनी में एक बच्चा का मर्डर हुआ बोल के। इमीडिएटली हमारा पेट्रोल कार हमारा एसआई सीन पे पहुंचा। इधर आया तो मुर्शिद आलम 19 इयर्स का बच्चा मरा हुआ है, स्पॉट डेड। अभी उनका माँ बाप से बात कर रहे, अभी कंप्लेंट भी लेने का है, लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा क्या है। वो लोग थोड़ा एक बच्चा का भी सस्पेक्ट कर रहे, वो हिसाब से हम केस दरियाफ्त करके आगे जाते। सर ये लोकल है या फिर ये बर्मा वाला है, इधर रोहिंग्या मुस्लिम है। इधर वो लोग भी बच्चा मरा से अक्यूज पर्सन भी बर्मा वाला भी बोल रहा, अभी वेरीफाई करना पड़ता। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज रफ्तार ड्राइविंग जानलेवा साबित हो रही है और हादसात का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़े में एक तेज रफ्तार इनोवा कार एक दुकान में अचानक दाखिल हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। कहा गया है कि आज सुबह की अव्वलिन सातों में एक तेज रफ्तार कार मिलारदेवपल्ली के इलाके में एक दुकान में दाखिल हो गई, जिसके नतीजे में दीपक नामी एक नौजवान हलाक हो गया, जबकि इसके वालिद प्रभु महाराज और इसका भाई सत्यानाथ जख्मी हो गए। ये तीनों दुकान में सो रहे थे कि कार इसमें आ पड़ी। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। कहा गया है कि इस खानदान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। वो मिलारदेवपल्ली के इलाके में ब्लैंकेट फरोख्त किया करते थे। ये कार शमशाबाद से आ रही थी और इंतहाई तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार में सवार 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि 3 अफराद फरार होने में कामयाब रहे। यूपी का रहने वाले मंदसौर जिले का, रोड पर दुकान लगा रहता है। हमारे गांव वाले बाजू वाला 2 आदमी जीप वाला आके मार के गया उसको। तो रात में 5:30 बजे लगभग उसको दोनों माँ बेटा को मार दिया, एक बेटा घायल है। मरने वाले का प्रभु महाराज है, उसका बेटा है दीपक, गांव खेड़ा है उसका, और फिर थाना श्यामगढ़ है।
घायल वाला सत्तू नाम है उसका, वो तो थोड़ा ठीक है, अभी नॉर्मल है। रात में जीप आया इधर से तो अंदर सो रहा था दुकान में, तो आके ऊपर चढ़ा के चारों पकड़ा भी गया वो लोग। वो इंसाफ क्या साहब, वो हमारा देखो कार्रवाई करना पड़ेगा पुलिस से। छोटे छोटे बच्चे, उसको दोनों को बाप भी मर गया, उसका भाई भी मर गया, एक ही भाई रह गया, तो उसको कुछ भी इंसाफ चाहिए हमको। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में पीक कोल्ड वेव की वार्निंग, हैदराबाद समेत कई अजला में टेम्परेचर में 6 से 9 डिग्री कमी का खदशा। 18 से 21 दिसंबर तक ज्यादा असर का इम्कान। हैदराबाद की समाजी कारकुन खालिदा परवीन ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। मुस्लिम खातून के नकाब हटाने को करार दिया मुस्लिम खवातीन के हिजाब और विकार की तौहीन। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन में 3 माह की तौसी। तेलंगाना वक्फ ट्राइब्यूनल का बड़ा फैसला, वक्फ रजिस्ट्रेशन का अमल तेज रफ्तारी से करने मिनिस्टर अजहरुद्दीन की हिदायत। सरमाई तातीलात गुजारने सदर जमहूरिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की आमद हैदराबाद। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का ने किया इस्तकबाल। रियासत में तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात भी हुए मुकम्मल। तीसरे मरहले में भी कांग्रेस को सबकत, बीआरएस का भी ठीक ठाक मुजाहरा। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।